Hanoi, the capital of Vietnam and a bustling city with a rich cultural heritage. Located in the northern Vietnam, this city is well known for its centuries-old architecture, vibrant markets, and thriving art scenes. With an estimated population of 7.7 million people as of 2022, Hanoi is one of the most populous and most visited cities in all of Southeast Asia. I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. When I look back upon the life I have lived and the choices I've had. Today we are in Hanoi, the capital city of Vietnam, और city को हम explore करना start कर रहे हैं from this first place which is Huan Lake, which is also in the heart of Hanoi. Although जो city है that is very hustling bustling, full of traffic, but यहाँ पर आके like this place has a very peaceful kind of a vibe. So आगे चलते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको इस लेक पर क्या क्या है. और यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है. From street food stalls serving up local delicacies to fine dining establishments serving gourmet cuisines from around the globe. Hanoi has something for everyone. This bustling ancient city features a mix of old-world charm and modern amenities, making it an ideal destination for travelers looking to explore this part of the Vietnam. This historical lake lies at the heart of the city and has become a cherished part of Hanoi's culture for centuries. Famous for its peaceful beauty and historical values, and it is one of the top choices whenever you are in Hanoi. और ये जो Huan Lake है इसको Sword Lake भी बोला जाता है, and it has a very interesting story behind it. कि मतलब ये माना जाता है कि जो वियतनाम के किंग थे, one day he went to fishing with his friend, और वहाँ पर जो है उनको एक मैजिकल स्वॉर्ड मिली और वो स्वॉर्ड अपने साथ घर पर ले आए. और वो जो किंग थे उनको लगता था ये हेवन सेंट स्वॉर्ड है, तो उन्होंने उसको अपनी बैटल्स में और जो भी वो वॉर वगैरह लड़ते थे उसमें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड ही गेन्ड विक्ट्री एज वेल. बट कुछ टाइम बाद जब वो दोबारा से फिशिंग गए तो लेक में से एक बहुत जाइंट सा टर्टल बाहर आया, एंड ही ऑर्डर्ड द किंग टू रिटर्न द स्वॉर्ड बैक टू द ड्रैगन किंग. और फिर उन्होंने जो है वो स्वॉर्ड उनको वापस कर दी, एंड दैट्स वाई जो इस लेक का नाम है हुआन केम, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेक ऑफ द रिटर्न sword. This lake is also the home of tortoises. तो अगर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद हमें tortoise भी दिख जाएगा यहाँ पे. And also जो कलर है लेक का ना, that keeps on changing depending on the reflection of the sun. कभी डार्क ग्रीन हो रहा है, कभी लाइट ग्रीन हो रहा है, but super beautiful. Don't have words to describe this beautiful lake. क्या words use करें, बस beautiful, beautiful and more beautiful. लेक के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है ये सॉन टेम्पल, विच यू कैन सी बिसाइड्स मी. इसके अंदर शूटिंग तो अलाउड नहीं है, बट अंदर से भी इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और इसके अंदर एक जाइंट स्पेसिमेन है टर्टल का, विच वेज अराउंड 250 kgs. श्योर आप लोगों को वो वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट दैट्स द टर्टल टावर जहाँ पे जो किंग है वो फिशिंग के लिए जाते थे. एंड नाउ डेज दैट्स ऑल्सो सिंबल ऑफ यूनिटी फॉर वियतनामीज पीपल.
किसी भी नई सिटी को स्कूटी पे एक्सप्लोर करना इज़ सो मच फन। हालांकि राइट इन माई फ्रंट यू कैन सी यहाँ पे हो बस का काउंटर भी है, बट दिस टाइम वी थॉट कि हम पूरी सिटी को स्कूटी से एक्सप्लोर करेंगे। मैप ही लगाना भूल गए, अब गूगल मैप पे नेक्स्ट डेस्टिनेशन लगा रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड ड्राइविंग होने की वजह से लेन्स में इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि किस साइड जाना है, बट जस्ट लविंग द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अगर हनोई की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से पर्सनली दैट गोज़ टू सेंट जोसेफ कैथेड्रल। This magnificent and iconic structure located in the heart of city is one of the oldest churches in Asia, having built by French colonists during the 19th century. और किसी भी विजिटर के लिए सेंट जोसेफ कैथेड्रल को लोकेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, because you will be in awe by its beauty and grandeur. And this building is so classy with its classic French colonial architecture and its eye-catching spire reaching up into the sky. This is one of the most beautiful churches we have seen so far. और इनफैक्ट यहाँ चर्च के बाहर ना लाइक देयर आर मैनी रिक्शा राइड्स विच आर ऑल्सो अवेलेबल, जो आप ले सकते हो, जो आपको पूरे एरिया का टूर करते हैं। और यहाँ के जो रिक्शाज हैं ना, दे आर लाइक वेरी स्पेशल काइंड। जो रिक्शे वाले भैया हैं, दे सिट एट द बैक पैडलिंग द व्हील्स एंड यू सिट इन द फ्रंट enjoying the complete view. I hope you are enjoying the video so far. अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम यहाँ पे and then we are going to shoot some interesting content for our Instagram. And if you don't follow us on Instagram, do check out our Insta handle @rolling2. ओ बाप रे, तो दिल्ली की तरह गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी भी वैसे ही क्रेजी। Located on a small island on the eastern side of West Lake, Tran Quoc Pagoda was built during the 6th century in the dedication to the Buddha. It is also considered to be one of Vietnam's national historic sites, and its long history has made it an important religious destination for the locals as well as the tourists. We are at Tran Quoc Pagoda, and like other temples in Vietnam, the outstanding feature of this pagoda is its architecture, जो कि बिल्कुल बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे बेस्ड है। और ये उन जगहों में से एक है जहाँ पे पर्सनली मैं आने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज आई हैव रेड अ लॉट अबाउट दिस प्लेस। और इस पगोडा की सबसे खास बात है इसकी मेन बिल्डिंग, विच इज सराउंडेड बाय 5 terraces that ascend towards the sky, symbolizing ascending staircases towards the enlightenment in Buddhist tradition. And that makes it one of a kind. जितना भी मैंने इस जगह के बारे में पढ़ा था, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ ट्रू टू द फुलेस्ट। और ऑल्दो हम यहाँ पर शाम के टाइम पे आए हैं, ऑलमोस्ट इट्स द क्लोजिंग टाइम, सो देयर इज़ नॉट मच क्राउड हेयर। और यहाँ पे एंट्री के लिए देयर इज़ नो एंट्री फी, बट यू कैन ऑलवेज पे सम डोनेशन आउट ऑफ रिस्पेक्ट। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इस स्तूपा के राइट एट द टॉप देयर इज़ दिस वाइट स्ट्रक्चर विच इज़ एक्चुअली अ 9 लेयर्ड लोटस। सो मतलब वो एक बहुत यूनिक पीस ऑफ आर्ट है जो मतलब मैंने पहले कभी नहीं देखा है। पगोड़ा क्लोजेज एट 5:30 PM एंड बिल्कुल इसके एडजेसेंट पे देयर इज दिस लेक। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, बैठेंगे, बिकॉज सुबह से आज भाग रहे हैं। स्तूपा के बिल्कुल सिमेट्रिकली सिचुएटेड है ये बोधि ट्री, विच इज़ द मेन सिंबल ऑफ बुद्धिज़्म। और यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे हरे हरे पेड़ हैं, बट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस बोधि ट्री इज़ बाय इट्स हार्ट शेप्ड लीव्स।
and it's a perfect spiritual space for doing your meditation. बहुत सुंदर लग रही है क्योंकि अभी सनसेट टाइम है और ऑरेंजेस काइंड ऑफ शेड आ रहा है पूरे पानी के ऊपर, बट आई थिंक यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, हम गलत साइड से आ गए हैं एंड द वे टू द लेक इज फ्रॉम देयर, राइट फ्रॉम द फ्रंट। पूरा दिन धूप में चलने के बाद द ओनली थिंग यू नीड इज रिफ्रेशिंग कोकोनट वाटर। शाम हो गई है और शाम बिताने के लिए ओल्ड क्वार्टर से अच्छी जगह और कोई नहीं है, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट और आपको भी दिखाते हैं वहाँ और क्या क्या है। If you just simply ask us कि हनोई में ऐसी कौन सी जगह है where you should be spending most of your time, and our answer would be Old Quarter, because this place is so magical throughout the day, throughout the evening and throughout the night. हर घंटे कुछ नया, कुछ मैजिकल सा यहाँ पे होता है. And you would absolutely love spending your time here. Visitors can explore the fascinating part of Hanoi by taking visiting tours, simply wandering around their own, and during their journey they will come across many interesting sights such as old pagodas, traditional houses with hidden courtyards, and small shops selling everything from food to local handicrafts. And that's, in short, is Old Quarters. बेस्ट इज़ ऑलवेज केप्ट फॉर द लास्ट एंड वी आर एट ओल्ड क्वार्टर और बहुत सारे लोकल्स के लिए दिस इज़ द रियल हनोई। ऑल्सो काफ़ी सारे बैकपैकर्स और ट्रैवलर्स जो है ओल्ड क्वार्टर में ही स्टे करना प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज़ सच अ हैपनिंग प्लेस। मतलब यहाँ पे इतने सारे कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग के लिए चीज़ें, मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर एट वन प्लेस। ऑल्सो यहाँ से जो भी टूरिस्टी डेस्टिनेशंस है वो भी काफ़ी नियर बाय हैं। सो येस, दिस इज़ वन गुड ऑप्शन वेयर यू कैन स्टे। एज फार एज प्राइसेस आर कंसर्न, दिस इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू। The Old Quarter retains much of its traditional architecture from centuries ago and offers a glimpse into Hanoi's history.